Hello students, my name is Varuni from Social Science Department PCCP Resonance. We are going to discuss chapter from geography today, that is going to be minerals and energy resources. Now this chapter, if we consider, is a very important chapter from board perspective because of the fact that this contains a lot of map work that we are going to discuss today. Okay. Apart from that, theory has also been discussed, and this chapter relatively contains lot of areas which contains minerals. So we are going to first discuss what are minerals, where are they found, at what locations they are found, what geological processes are responsible for the formation of these minerals. Also, we are going to discuss the classification of minerals, and one by one then we are going to cover up all the minerals which are found in our country. Apart from that, we are also going to discuss some of the energy resources, energy minerals which are available, and the map work at the last. Okay, so let's begin. First, beginning with the definition that what is a mineral. Very important definition. इसको हम बहुत छोटी क्लासेस से कंसीडर करते हुए आए हैं कि हम मिनरल किसको बोलते हैं, राइट. सो व्हाट कैन यू कॉल अ मिनरल. मिनरल को अगर हम डिफाइन करें, सो द डेफिनेशन शुड बी इट इज अ होमोजेनियस एंड अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस which has a definite chemical composition and an internal structure और chemical composition is one and the same thing. okay, हर वो चीज, हर वो सब्सटेंस जो कि अर्थ के सरफेस पर हमें मिल रहा है नेचुरली और एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर है, हम उसको जिसका एक अपना खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसकी अपनी खुद की एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, हम हर उस सब्सटेंस को मिनरल बोलते हैं. क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग है, तो नेचर में जहां पर वो पाया जाएगा, जहां पर भी वो मिलता है, उसके फॉर्म्स बहुत तरीके के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमको अगर रॉक्स मिल रहे हैं तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, सो रॉक्स आर व्हाट. रॉक्स को हम अगर डिफाइन करें तो उस होमोजेनियस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? रॉक्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स है. ठीक है, एक पर्टिकुलर मिनरल जो कि फॉर्म हो रहा है आउट ऑफ अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. The first one is the physical factors which are acting upon it and the chemical conditions under which that particular mineral has been formed. Physical factors में हम यहाँ पर natural relief features को consider कर रहे हैं. Natural relief features से मतलब the kind of temperature, the kind of pressure, the kind of changes which are going on related to the physical अपीयरेंस और द फिजिकल एनवायरमेंट, हम यहाँ पर उन कंडीशंस की बात कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस मिनरल्स का शेप, साइज, color, hardness, crystal form, the luster that it holds and the density may vary from one mineral to another. So they are a homogeneous structure, but not all minerals will have the same physical properties or the same chemical properties. Okay. मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम इसको बहुत अधिकतर सुनते हैं ना हम कि मिनरल्स आर फाउंड इन ओर्स. ना व्हाट आर ओर्स? ओर्स को अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलते हैं? मिनरल को एक्चुअली में आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, राइट. वो मिल रहा है पर वो इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, तो जब वो इम्प्योर फॉर्म में है उसको हम ओर बोलते हैं. Okay, they are known as mineral ores. Now out of that ore you have to perform certain extraction process. आपको कई तरह के extraction process perform करने पड़ते हैं और उन extraction process के बाद हमारे पास जो substance निकल कर आता है उसको हम mineral बोलते हैं. The process might differ. ठीक है, वो अवेलेबिलिटी की कितनी डेप्थ पर मिनरल मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है. तो हम शाफ्ट माइनिंग भी करते हैं, हम ड्रिलिंग भी करते हैं, हम क्वेरिंग भी करते हैं और हम ओपन कास्ट माइनिंग भी करते हैं. आउट ऑफ देम
ड्रिलिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस जो कि बहुत डीप बोर्स के थ्रू ड्रिल किया जाता है. एग्जाम्पल यू कैन टेक इज पेट्रोलियम. Okay, and otherwise the minerals which are found near to the surface or can be dug out easily, उनके लिए हम open cast mining, shaft mining का इस्तेमाल, quarrying का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, पहले हम definition पढ़ लेते हैं. Mode of occurrences of minerals, they are found in ores. ores हमको समझ में आ गया कि ores का मतलब है कि वो impure form में मिल रहा है. The term ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements. Right now we have discussed previously that it is a homogeneous structure, so they are mixed with other elements, that is known as an ore. Minerals generally occur in the following forms. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर रॉक्स के बारे में हमने बात करी, तो सबसे पहले हम इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर बात करें तो इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. Primary, why? Because the other two are found or formed out of the igneous rock. The minerals may occur in cracks. ठीक है, क्रैक अगर किसी भी, क्रैक एक नेचुरल फीचर है, एक नेचुरल फॉर्म है जो कि हो सकता है क्रैक्स में, सर्वाइसेस में, फॉल्ट्स में या फिर जॉइंट्स में. सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो लेयर्स या फिर बेड्स पर मिलते हैं. ठीक है, ये जो decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents also forms the mineral. इसके अलावा मिनरल्स आपके एलुवियल डिपॉजिट्स में भी मिलते हैं. हमारी एलुवियल जो सॉइल है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में स्प्रेड आउट होती है, वहां पर भी आपको वेराइटी ऑफ मिनरल्स मिल जाएंगे. एंड इन द सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स. जो हमारा ओशन वाटर है, हमारा ओशन वाटर इज वेरी रिच इन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन. ये जो क्रैक्स होते हैं और ये जो जॉइंट्स होते हैं, इनको हम वेन्स और लोड्स बोलते हैं. ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? वेन्स और लोड्स. तो वो जो क्रैक्स हैं, अगर वो स्मॉलर क्रैक्स हैं तो दे आर नोन एज वेन्स, एंड इफ द क्रैक्स आर वेरी डीप दे आर नोन एज लोड्स. ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये लाइन लिखी है दैट दे आर फाउंड इन क्रैक्स, सर्वाइसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, दिस इज रेफरिंग टू वेन्स एंड लोड्स. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पर. वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस चैप्टर का बेस है. ठीक है, ये चैप्टर पूरा इसके ऊपर बेस्ड है. अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपके लिए आगे का चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा. जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं मिनरल्स का, तो हमारे पास ब्रॉड दो कैटेगरीज है. ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, मेटालिक और नॉन मेटालिक. थर्ड कैटेगरी, जैसा कि हमको चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है, एनर्जी मिनरल्स, जो कि कंबशन पर एनर्जी लिबरेट करते हैं, उनको हम एनर्जी मिनरल्स बोलते हैं. जैसे पेट्रोलियम हो गया, एनर्जी मिनरल है. कोल हो गया, एनर्जी मिनरल है. नेचुरल गैस हो गई, ये एनर्जी मिनरल्स होते हैं. मेटालिक में हमारे पास फिर तीन कैटेगरीज हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस. फेरस का मतलब Fe, कंटेनिंग आयरन. ऐसा मेटालिक मिनरल जो कि आयरन कंटेन करता हो इन एनी ऑफ द फॉर्म, दे आर नोन एज मेटालिक मिनरल्स. नॉन फेरस का मतलब दैट डज नॉट कंटेन आयरन इन एनी फॉर्म. थर्ड है हमारे पास प्रेशियस, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनको हम प्रेशियस मेटल्स में काउंट करते हैं. तो ये तो हो गए मेटालिक मिनरल्स. ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स में मतलब आप अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करो और डिफरेंशिएशन देखो, तो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल में एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन यही है, लस्टर और शाइन का. contains metal and does not contain metal. नॉन मेटालिक मतलब वो मेटल को कंटेन नहीं करता. मेटल की खुद की अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स में नहीं मिलेंगी. ठीक है, फेरस में अगर हम आए तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा. नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा. प्रेशियस के हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. नॉन मेटालिक में हमारे पास आता है माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा. एंड एनर्जी मिनरल्स मींस कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है, ओके, लेट्स सी. हम सबसे पहले
जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फेरस मिनरल्स का, उसका हम डिस्कशन करते हैं। फेरस मिनरल्स दे अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, टोटल जो आपका 3/4 प्रोडक्शन है टोटल वैल्यू ऑफ मेटालिक प्रोडक्ट्स का, वो फेरस मिनरल्स का होता है। तो अब हमारे पास इसमें आते हैं आयरन ओर। आयरन ओर, इंडिया हैज फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। दो क्वालिटीज के हमारे पास यहाँ पर आयरन ओर अवेलेबल है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट फाइनेस्ट को बोलते हैं हम, जिसमें वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन होता है अप टू 70%, जिसकी एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज होती है। हेमेटाइट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और 50 to 60% कंटेंट आयरन का इसमें होता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम मिनरल्स को नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस बता रहे हैं, तो ये अर्थ की सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? सबसे पहले उड़ीसा झारखंड बेल्ट, सेकंड है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बालारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु टुमाकुरु बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। इन जगहों पर हम आयरन ओर की प्रेजेंस देख सकते हैं। अगर हम इसको मैप पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैप, you are not supposed to ignore this map, this is an important map. If you are seeing this video, you may please share, you may please save this so that it can be used for your future reference also. Okay, we have marked over here where these belts are found. जो हमने यहाँ पर ये जो belts discuss करी हैं, ये वाली, हमने इन belts को मैप पर प्रोजेक्ट किया हुआ है। This is an important map. ओके, आयरन ओर का जो रिजर्व है, ठीक है, हम यहाँ पर आयरन ओर के रिजर्व की बात करते हैं। कुछ रीजन्स हैं और उनका प्रोडक्शन बताया हुआ है मिलियन टन्स में कितना होता है। सबसे पहले हम उड़ीसा की बात करते हैं। तो इंडिया का टॉप आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? उड़ीसा है। मेजर इसमें जो रीजन्स हैं जहां पर माइंस लोकेटेड हैं, दीज आर गुरुमाही सानी, सुलाईपत एंड बादाम पहाड़ इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, कीरीबुरु बागाईबुरु इन कियोंझार डिस्ट्रिक्ट, बोनाई इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। 62 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। 18% इंडिया का जो आयरन ओर का रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ के पास है। धाली राजहारा इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, बैलादेला इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट। बैलादेला हिल्स फेमस है। बैलादेला नाम आता है फ्रॉम द हम्प ऑफ एन ऑक्स, बैल बोलते हैं ना ऑक्स को, तो हम्प ऑफ एन ऑक्स से इसका नाम जो है बैलादेला है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन है दैट इज 30 मिलियन टन्स। थर्ड है कर्नाटका, known for its high quality ore, has the largest iron ore reserve in India. Donai Malai in Bellary, Hosepat, Baba Budan in Chikmagaluru district, Kudremukh in Chitradurg district, Arasul in Shimoga district. Kudremukh means Kudre refers to horse. ठीक है, हॉर्स के लाइक फेस है, मुख मीन्स फेस, तो हॉर्स लाइक फेस है, इसीलिए उसको कुदरे मुख बोला जाता है। 22 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन है। झारखंड हैज अ क्वार्टर ऑफ इंडियाज आयरन ओर डिपॉजिट, नोआव मुंडी गुआ बुदाबुरु। 22 मिलियन टन्स का इसका जो प्रोडक्शन है वो एनुअल प्रोडक्शन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैंगनीज। मैंगनीज मेनली यूज्ड, इसमें आपको एरियाज थोड़े सा याद रखने की जरूरत है कि कौन सा एरिया में कौन सा पर्टिकुलर मिनरल फाउंड है और कौन सा स्टेट हाईएस्ट प्रोडक्शन कर रहा है इस पर्टिकुलर मिनरल का। मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय। ठीक है, इसका यूज बता दिया। नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील। It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paint. Odisha is the largest producer of manganese ores in the world. The account है हमारे पास that is 1/3 of the country's total production according to the statistics of 2001. ठीक है, हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि we also have certain changes which can also be made.
नॉन फेरस मिनरल्स में हम इंक्लूड करते हैं कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड. These minerals play a vital role in a number of metallurgical, engineering and electrical industries. तो हमारे पास सबसे पहले आता है कॉपर. कॉपर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं that it is malleable, ductile and good conductor of heat and electricity. It is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industries. जो बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश में, खेतड़ी माइंस in Rajasthan and Singhbhum district of Jharkhand are the leading producers of copper. Next we have bauxite. Bauxite deposits, they are formed by the decomposition of wide variety of rocks which are rich in aluminum silicates. ठीक है, aluminium is obtained from bauxite, यानी bauxite उसका ore है. Aluminium has good conductivity and great malleability. Deposits are mainly found in the Amarkantak Plateau, Maikal Hills and the Plateau region of Bilaspur, Katni. यहाँ पर आपको ये इसकी प्रेजेंस मिलेगी. नॉन मेटालिक मिनरल्स में हमारे पास नेक्स्ट है माइका. माइका इज अ मिनरल विच इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स. ठीक है, माइका जो है सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स से मिलकर बनता है. इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन. ठीक है, ये इसके कलर्स हैं. माइका इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज हैं दैट इट हैज एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, low power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage. Mica deposits are found in the northern edge of the Chota Nagpur Plateau region. आपको यहाँ पर एक छोटा सा काइंड ऑफ एन रिमेम्बरिंग टिप है, क्योंकि हम मिनरल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मिनरल्स इंडिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं हो सकते. तो इन केस अगर हमें कभी मिनरल कोई मैप पे मार्क करने के लिए आया एंड वी डू नॉट रिमेम्बर द स्टेट, तो कभी कभी हम हिट एंड ट्राई करते ना कि यार ट्राई करके देख लेते क्या पता सही हो जाए. तो इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है वो पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज मिनरल हब ऑफ इंडिया. ठीक है, इट इज नोन एज मिनरल हब ऑफ इंडिया. तो अगर हमें कभी हिट एंड ट्राई भी करना हो तो हम हमेशा उस जगह को मैप पर मार्क करें. 99% प्रोबेबिलिटी है दैट छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज अप्रोक्सीमेटली ऑल द मिनरल्स विच आर फाउंड इन ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, अब हम आते हैं कुछ रॉक मिनरल्स पर. तो हमारे पास रॉक मिनरल्स में आता है लाइमस्टोन. ठीक है, limestone is found in rocks which are composed of calcium carbonate or calcium and magnesium carbonate. It is a very basic raw material for the cement industry and it is essential for smelting iron ore in the blast furnaces. Blast furnaces में smelting process के लिए ये काम में लिया जाता है limestone. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि limestone कैसा अपीयर होता है. Conservation of minerals. Actually what you can see, the total volume of workable mineral deposits जितने भी हैं वो 1% है अर्थ के क्रस्ट का. ठीक, अब जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस मिनरल रिप्लेनिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रेयर है, प्लस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा चाहिए. जियोलॉजिकल प्रोसेस टाइम बाउंड तो है नहीं कि इतने साल में होना है तो होना है, दे आर नेचुरल. सो दीज प्रोसेसेस जो इनकी प्रेजेंट रेट ऑफ कंपैरिजन है और जो रिप्लेनिशमेंट का रेट है उसमें बहुत नाइट एंड डे का डिफरेंस है. ठीक है, हमारा कंजम्पशन बहुत हाई है और नेचर का रिप्लेनिशमेंट उस चीज का काफी कम है. एज अ रिजल्टेंट होता क्या है कि जो आपके एग्जिस्टिंग मिनरल्स हैं उनके ऊपर बहुत अनड्यू प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू होता है. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और स्टडी ग्रोथ नहीं है, रैपिड ग्रोथ है, और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज की ही ग्रो नहीं करी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फिनोमिना है दैट इट हैज सीन अ ग्रोइंग ट्रेंड. सो दैट इज व्हाई मिनरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं. ठीक है, उनका जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना नीड ऑफ द आवर है, बिकॉज वी नीड टू प्रिजर्व देम. वंस दे आर एग्जॉस्टेड इट इज इम्पॉसिबल टू रीजेनरेट इट.
Continued extraction of ores lead to increasing cost as mineral extraction comes from greater depth along with decrease in the quality. ठीक है, quality भी decrease होती जा रही है धीरे धीरे. A concerted effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustained manner. Improved technology needs to be constantly evolved to allow us of low grade ores at the low cost. Recycling of metals using scrap metals and other substitutes are the steps in conserving our mineral resources for the फ्यूचर. ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के थ्रू हम मिनरल्स के कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि हम इन तरीकों से मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? एनर्जी रिसोर्सेज की. ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे मिनरल्स जो कि कंबशन पर एनर्जी को लिबरेट करते हैं, उनको हम एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं या फिर वो एनर्जी मिनरल्स भी बोले जा सकते हैं. वो दो तरीके के हो सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज भी हो सकते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज भी हो सकते हैं. So before we move further, I would want you to please take a very quick review or take just 10 seconds to see what we have written over here. Just read it for 10 seconds, just for 10 seconds so that it becomes clear. I will explain you this. Okay, so you might have read, we are classifying here energy minerals into two segments, conventional and non-conventional sources. Okay, conventional sources का मतलब ये है ट्रेडिशनल मेथड से जो भी मीन्स या जो भी तरीके इस्तेमाल करे जाते थे एनर्जी को लिबरेट करने के लिए, उनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज में काउंट करते हैं. जैसे फायरवुड हो गया, केटल डंग केक हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया. इनसे हम जो भी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो कन्वेंशनल सोर्सेज में काउंट होती है. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि ये रिसेंटली डेवलप्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, पोल्यूशन फ्री है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनको हम रिन्यू कर सकते हैं. इनका इनिशियल कॉस्ट, द बेसिक डिफरेंस कम्स ओवर हियर. जो इनका इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप है वो डेफिनेटली हायर होगा, चाहे हम इनमें से कोई भी एनर्जी की बात कर ले तो, सोलर एनर्जी की बात कर ले तो, विंड एनर्जी की बात कर ले तो, टाइडल एनर्जी की बात कर ले, जियोथर्मल एनर्जी की बात कर ले, बायोगैस या फिर एटॉमिक एनर्जी. हम किसी भी सेगमेंट को अगर क्लासीफाई कर ले तो हर में इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई रहेगा, बट इट बिकम्स वेरी चीप इन द लॉन्गर रन. So let's take a difference. What are the main differences what you can see in the conventional and non-conventional sources of energy? Conventional sources of energy refers to traditional sources of power like charcoal, firewood, coal, petroleum, etc. These sources of energy are not renewable. Once exhausted, they cannot be regenerated very easily. No doubt they can be, but उसका हमें surety नहीं दे सकते कि कब तक human life exist करेगी. जनरेशन ऑफ एनर्जी इज वेरी एक्सपेंसिव एंड दे कॉज पोल्यूशन. ठीक है, पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर जो हमको याद रखना है कि नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करने को क्यों बोला जा रहा है लोगों को, बिकॉज पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की हम सबको जरूरत है. Non-conventional sources of energy are recently developed sources of energy from the sun, wind, tides, geothermal, etc. हम ये सब डिस्कस करेंगे. These sources are renewable. Initial cost of generation is high, but they are cheaper in the longer run. Eco-friendly हैं और कम pollution को cause करते हैं. अब हम आते हैं सबसे पहले conventional sources of energy के ऊपर हम आते हैं. Very important. कोल इंडिया में abundantly available fossil fuel में काउंट होता है. तो तीन तरह के कोल हैं जो कि अवेलेबल हैं, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट. ठीक है, जो लिग्नाइट है लो ग्रेड ब्राउन कलर कोल विच इज सॉफ्ट एंड इट हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट. हाई मॉइस्चर कंटेंट जहां पर भी होगा कोल में तो वो बर्निंग में उतना ही ज्यादा, एक तो टाइम भी लगाएगा और पॉल्यूशन भी कॉज करेगा. Found in the Neyveli in Tamil Nadu, used to generate electricity. Bituminous, most popularly used coal. It is used in smelting iron in the blast furnaces. Anthracite, very high quality hard
coal. Metallurgical coal is found at Damodar Valley, West Bengal, Jharkhand. Important coal fields हैं Jharia, Raniganj and Bokaro. Godavari, Mahanadi, Son and Wardha valleys also contains coal deposits. Tertiary coal नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में अवेलेबल है. तो हमारे पास यहाँ पर जो हमने सबसे पहला डिस्कस किया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में वो था कोल. नेक्स्ट कम्स पेट्रोलियम. पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज ड्रिलिंग. ठीक है, ड्रिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हो, फिर उसके बाय प्रोडक्ट बनते जाते हैं बहुत सारे. फाउंड इन द रॉक्स ऑफ टर्शरी एज. 63% जो हमारी पेट्रोलियम का डिमांड है दैट कम्स फ्रॉम मुंबई हाई. 18% गुजरात में अंकलेश्वर ऑयल फील्ड है वहां से आता है. 16% आसाम दिग्बोई, नाहर कातिया एंड मोराम हुग्रीजन ऑयल फील्ड. दिग्बोई जो है ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया का. पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है ना वो नोडाल इंडस्ट्री की तरीके से एक्ट करती है. किसके लिए? नोडाल का मतलब होता है समथिंग विच इज लोकेटेड एट द सेंटर. ठीक है, जिससे बाकी चीजें ऑपरेट हो रही हैं, दैट इज नोडाल इंडस्ट्री. सो इट इज नोडाल इंडस्ट्री फॉर द सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज. यानी कि इनका जो बेस है, जो सेंटर है, वो सेंटर में हमारे पास ये वाली रिफाइनरीज इंक्लूड होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कैसे होती है? पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट होती है, जो सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती है उसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं. इट इज वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज इट हैज लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. इट इज यूज्ड एज सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में यूज करी जाती है व्हीकल्स में. कहां पर है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मुंबई हाई. और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस. पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है. तो हमारे पास यहाँ पर पाइपलाइन भी मेंशन्ड है. हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लॉन्गेस्ट है, 1700 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन दैट ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है पर कैपिटा वो एक इंडेक्स माना गया है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. कन्वेंशनल सोर्सेज से भी होती है और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से भी हो रही है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ वाटर. भाखड़ा नागल एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. Thermal electricity by coal, petroleum or natural gas, and there are over 310 thermal power plants which are located in India. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारे पास आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल. दे आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. The first one is nuclear और atomic energy. Nuclear और atomic energy alteration of structure of atoms से होती है. इसमें हम fission और fusion दो process का use करते हैं. Uranium and thorium are the main chemicals which are used for the production of nuclear energy. और process fission और fusion का use किया जाता है. Electricity which is produced from this process and the energy which is released is used for generation of electricity. Uranium and thorium which is available in Jharkhand, Rajasthan, Kerala. Kerala में monazite sands जो हैं वो available है which is used for generation of nuclear power. नेक्स्ट है हमारे पास सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी का मतलब सन की जो हम हीट को ट्रैप करते हैं और उससे जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं. फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, इसका यूज किया जाता है फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया दैट इज लोकेटेड एट माधापुर नियर भुज इन गुजरात. नेक्स्ट इज विंड एनर्जी. विंड में हम विंड फार्म मतलब विंड मिल्स का यूज करते हैं. विंड मिल्स जनरली एक टर्बाइन से अटैच होते हैं और जब वो चलते हैं तो टर्बाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको कलेक्ट किया जाता है. तो लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर तमिलनाडु में लोकेटेड है फ्रॉम नागरकोइल
तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई. Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Lakshadweep and Maharashtra also have wind farms. Nagarcoil and Jaisalmer are very well known for effective use of wind energy. ठीक है. बायोगैस का मतलब ये है कि हमारा जो भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, वो वेस्ट को मतलब वो कुछ भी हो सकता है, हमारा डोमेस्टिक वेस्ट भी हो सकता है. तो श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस and that is meant for domestic consumption in the rural areas. जिसमें हम decomposition के process को use करते हैं, जिसमें organic material को decompose किया जाता है और उससे जो गैस generate होती है उसमें high thermal efficiency होती है, which is used in rural households. Tidal energy, floodgate dams are built across inlets to use ocean tides to generate electricity. 900 megawatt tidal energy power plant in India is set up at the Gulf of Kutch by the National Hydropower Corporation. Geothermal energy, अर्थ की जो भी हीट है और उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी. जियो रेफर्स टू अर्थ, ठीक है. Thermal means the electricity with that we are generating, source of power you can say. The steam rising from the earth's surface due to the heating process which is inside the earth is used to generate electricity. ऐसा project एक located है पार्वती valley near Manikaran in Himachal Pradesh and the other is located in Puga Valley, Ladakh. Okay, let's see the difference between hydroelectricity and thermal electricity. Hydroelectricity is generated by fast flowing water and it is a renewable resource. Thermal energy जो thermal power stations है non renewable fossil fuel का इस्तेमाल करें जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी में इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स जिनको हम बोलते हैं. उनमें से वन सच पर्पस विच इज सोल्ड इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे भाखड़ा नागल हो गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया, कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट्स हो गया. ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के यूज में लिए जाते हैं. थर्मल की अगर हम बात करें तो 310 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जैसे विजयवाड़ा थर्मल पावर प्लांट, रामा गुंडम थर्मल पावर प्लांट, कोटा में भी थर्मल पावर प्लांट एग्जिस्ट करता है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हमारे लिए ऑब्वियसली एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है, जिसके बिना ना इंडस्ट्रीज वर्क कर सकती, ना डोमेस्टिक हमारी जो डोमेस्टिक यूनिट्स हैं वो वर्क कर सकती. तो एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, कमर्शियल, डोमेस्टिक, उन सबको इनपुट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. सो वी नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ through which we can actually look for development of energy. So there are some ways in which each of our contribution can help in saving energy resources, जैसे public transport का use करना for instead of individual vehicles, switching off the electricity when it is not in use, using power saving devices and non conventional sources के ऊपर shift करना is very 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 important in today's modern contemporary times. Let's take a look at the map work. Very important map work. This map actually has been taken from one of the important sources and it shows nuclear reactors in India. Operable are 22, under construction are 7. Kakrapar 3. One of the 7 under construction reactors achieved criticality on 22nd of July. Now we can see that which of these are operating. The ones which are marked in blue are operating. So we have Narora, राजस्थान में हमारे पास रावत भाटा है, काकरापाड़ा तारापुर महाराष्ट्र, कायगा, कालापक्कम, ये हमारे पास ऑपरेशनल प्लांट्स हैं. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. अगर हम इसको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पर लोकेट करें तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स मार्क्ड हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप.
Next we have the oil fields. Next we have the coal fields, coal mines, oil fields, major natural gas reserves, HVJ natural gas pipeline. Okay, again an important map work which has been discussed. नेक्स्ट वी हैव आयरन ओर फील्ड्स, आयरन ओर माइंस. इसमें आप फील्ड्स को फिर भी एक बार को स्किप कर सकते हो, चाहे हम पुराना मैप देखें तो भी वहां पर आप फील्ड्स को स्किप कर सकते हो, पर माइंस इंपॉर्टेंट है. ऑयल फील्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, ये द वंस व्हिच आर मार्क्ड इन रेड कलर, ये सारी ऑयल फील्ड्स हैं, अगर आप यहाँ पर भी देखो तो. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एरियाज विच आर प्रोड्यूसिंग मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, आयरन और जहां से एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के बाहर, हमारे पास वो वाले एरियाज भी मार्क्ड हैं. अगर मैच द आयरन और डिपॉजिट्स विच आर इंडिकेटेड ऑन द मैप ऑफ इंडिया, हमने यहाँ पर एक सैंपल के फॉर्म में क्वेश्चन को पुट अप किया कि हाउ कैन दीज क्वेश्चंस बी आस्क्ड टू यू रिलेटेड टू द चैप्टर 1, 2, 3, 4 विद देयर रिस्पेक्टिव नेम्स. सो you have to mark this 1, 2, 3, 4. ठीक, आपको इसमें बताना है कि कौन सी एरिया कौन सी जगह पर आती है. ठीक है, तो B इज रत्नागिरी, A इज मंडला, C इज मयूरभंज एंड D इज बालारी. ठीक है, आपको यहाँ पर मैच करना है दैट व्हाट एरिया मैचेस विद which of the respective deposit which have been asked in the question. So this is a very short chapter that we have discussed today, but and very indeed a very important chapter from 10th board perspective, 10th board point of view. So please, when you study this chapter in detail, always and always look for what options have been given, and also the map work what we have discussed is very important. In the map work you can definitely skip the part of fields, but the mines are important, the areas accordingly are important. Okay, so this is all from the chapter minerals and energy resources. Thank you so much students.